Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Working with Flash CS6. In this chapter, you will learn about what is symbol, creating symbols, what is animation, tweens in Flash, motion guide and classic motion guide. What is symbol? A symbol is nothing but a static object. We can see it in animation. You can import it from any source or you can create it in your Flash program. Once you create a symbol, you can reuse it throughout your document or in any other document. It is stored in a library for future use. When you use a symbol on a stage, you are actually using its instance, which is a copy of a symbol, not the original one. It has its own individual properties like color, size, etc. So any changes made in the instance does not affect the actual symbol. A library is a storehouse of sound, buttons, animations, graphics, etc., which all are usable. So symbols reduce the size of a file because its size is considered only once and it does not matter how many times you use it in your document. The unused symbols in library does not affect the file size. अच्छा देखिए symbol क्या है? Symbol is nothing but एक static object है. Okay, इसे आप animation में देख सकते हैं. आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सोर्स में या फिर आप अपने फ्लैश प्रोग्राम में इसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट? जैसे आपने एक बार क्रिएट किया सिंबल, अब आपको ये आप इसको रीयूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट थ्रू आउट डॉक्यूमेंट या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी. तो ये आपका लाइब्रेरी में स्टोर होता है फ्यूचर यूज़ के लिए. तो जब आप एक सिंबल को यूज़ करते हैं ना स्टेज पे, तो एक्चुअली आप इसका इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं जो कि सिंबल का कॉपी होता है, नॉट द ओरिजिनल वन, राइट? तो इसकी खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है लाइक कलर, साइज एक्सेट्रा. तो जो भी चेंजेस आप इंस्टेंस में करते हैं वो एक्चुअल सिंबल को अफेक्ट नहीं करता है. अब लाइब्रेरी आपका स्टोर हाउस है, साउंड्स, बटन, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, जो ये सारे आपके रियूजेबल है, राइट? तो सिंबल क्या करता है कि साइज जो है फाइल का उसको रिड्यूस कर देता है क्योंकि इसका जो साइज है सिर्फ एक ही बार कंसिडर किया जाता है. ओके, एंड ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार इसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो जो अनयूज सिंबल्स होते हैं लाइब्रेरी में वो फाइल साइज को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते. ओके, फैक्ट फाइल. अ लाइब्रेरी इज अ रिपोजिटरी ऑफ रीयूजेबल ग्राफिक्स, एनिमेशन, बटन, साउंड एक्सेट्रा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, राइट? टाइप्स ऑफ सिंबल्स. इन फ्लैश द सिंबल्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. A. Button. It is a symbol which responds to a mouse click or key press or another event. B. Graphics. These symbols are static images. They can be utilized time and again to make an animation. C. Movie clip. Movie clip is a reusable flash animation which runs independently in its own timeline. अच्छा देखिए, थ्री मेन टाइप्स के हैं आपके सिम्बल्स. इसमें है बटन, तो ये रिस्पॉन्ड करता है माउस क्लिक पे, ओके, या फिर की प्रेस पे या आपका कोई भी दूसरा इवेंट है. ग्राफिक्स आपके स्टैटिक इमेजेस होते हैं, राइट? इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अगेन एनिमेशन बनाने के लिए. एंड मूवी क्लिप आपका रीयूजेबल फ्लैश एनिमेशन होता है जो इंडिपेंडेंटली रन करता है अपनी टाइमलाइन में, राइट? क्रिएटिंग सिंबल्स. टू क्रिएट सिंबल्स द स्टेप्स आर एज फॉलोज. यू कैन ड्रॉ अ ट्रक ऑन द स्टेज. यूज द ओवल टूल एंड रेक्टेंगल टूल टू ड्रॉ इट. Select the whole object truck using selection tool. Go to modify and select convert to symbol option from the drop down list. A convert to symbol dialog box opens. Now give the name of the symbol which is the truck. Now click on type which is a drop down list. Now choose graphic option from the list. Click OK now. A blue outline will be seen around your symbol. A small hollow circle will also be visible in the center of the symbol. A symbol will be saved in the library so that it can be used in the document again. Use the library symbols to make multiple copies of the same symbol. Now, you can change the properties of the object on the stage through the property panel, which will not affect the original symbol. It is possible to change the properties of the symbol in the library panel. For this, right-click on the symbol name and select Edit option from drop-down menu. You will move to the edit window of symbol. Now change the door color of truck by selecting the door using selection tool and change its color to brown. When you manipulate the symbol, all such changes are automatically applied to all instances of the symbol. Click on back button to exit from the edit mode. तो चलिए देखते हैं सिंबल क्रिएट करके देखते हैं हम कैसे सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रक को ड्रॉ करना है स्टेज पे. आप कर सकते हैं.
ओवल टूल एंड रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए। फिर सिलेक्शन टूल से हम ऑब्जेक्ट को यानी ट्रक को, पूरे ट्रक को सिलेक्ट करेंगे। मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से कन्वर्ट टू सिंबल। अभी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ओके, अब सिंबल को नाम दे दीजिए। सिंबल इज व्हाट, ट्रक। फिर क्लिक ऑन टाइप। अब यहाँ से चूज करेंगे ग्राफिक ऑप्शन को। ओके, देन ओके। अब देखिए ब्लू आउटलाइन है आपके सिंबल में दिख रही है ना। एक छोटा सा हॉलो सर्कल भी विजिबल है सेंटर, सिंबल के सेंटर में। अब ये जो सिंबल है ना, सिंबल सेव हो जाएगा आपका लाइब्रेरी में, ताकि आप इसको यूज कर सके डॉक्यूमेंट में फिर से। ओके, अब लाइब्रेरी सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं उसकी सेम सिंबल की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। ओके, अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को भी आप चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी पैनल के थ्रू, जो कि ओरिजिनल सिंबल को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो जो ये देखिए पॉसिबल है कि आप जो सिंबल की जो प्रॉपर्टीज उसे चेंज कर सकते हैं लाइब्रेरी पैनल में। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है सिंबल नेम पे, फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एडिट ऑप्शन, राइट। अब आप जाएंगे एडिट विंडो ऑफ सिंबल पे। ओके, नाउ कलर चेंज करेंगे, डोर कलर का चेंज करना है तो हम इसके लिए यूज करेंगे सिलेक्शन टूल और फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर वो करेंगे टू ब्राउन। जब आप सिंबल को मैनिपुलेट करते हैं तो ये सारे चेंजेस आपके ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं सिंबल के जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं। ओके, नाउ वी विल क्लिक ऑन बैक बटन। ओके, और इससे हम एग्जिट हो जाएंगे इस एडिट मोड से, राइट। नाउ व्हाट इज एनिमेशन? We have used the word animation many times in the previous chapter, but the question is, what is animation? Animation is an illusion of the movements of the series of still images created by modifying the objects in a rapid succession. Traditionally, animations were created by drawing objects which were photographed and exhibited on films. But nowadays, various computer graphics softwares are used to create animations with CGI. That is computer generated imagery. अच्छा देखिए, वर्ड एनिमेशन हमने कितनी बार पढ़ लिया था प्रीवियस चैप्टर में ना। सो द क्वेश्चन इज कि एनिमेशन है क्या? एनिमेशन इल्यूजन है ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस। एक्चुअल में स्टिल इमेजेस होती है, राइट, इनका मूवमेंट होता है जिसको क्रिएट किया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करके एक रैपिड सक्सेशन में, राइट। तो ट्रेडिशनली एनिमेशंस क्रिएट की जाती थी बाय ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, उनको फोटोग्राफ किया जाता था, एग्जिबिट किया जाता था फिल्म्स में। बट आजकल बहुत सारे कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए, राइट। फैक्ट फाइल: most Adobe Flash films are created using only vector-based drawings. On October 15, 1997, the first cartoon series, The Goddamn George Leaker Program, was launched. It was produced specifically for the internet. आपकी जो ज़्यादातर Adobe Flash films थी वो क्रिएट होती थी सिर्फ एक आपका वेक्टर बेस्ड ड्राइंग्स को यूज़ करके। तो अक्टूबर 15, 1997 में जो पहला कार्टून सीरीज था द गॉड डैम जॉर्ज लीकर प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था और ये प्रोड्यूस किया गया था स्पेसिफिकली इंटरनेट के लिए। ओके, ट्विन्स इन फ्लैश. In Flash, twins means to define some actions between 2 points in a timeline. A. Shape twin. B. Motion twin. The difference between both types in that shape twin works with object, not symbols, and motion twin works with symbols. तो देखिए फ्लैश में आपके twins हैं, shape and motion twin. तो जो difference है दोनों ही types में वो ये है कि जो shape twin है, shape twin, वो work करता है object के साथ, ना कि symbol के साथ, and जो motion twin है वो work करता है symbols के साथ, right? Shape twin. This feature of Flash is utilized to mutate from one drawing object to another. It must be noticed that shape twin works only with objects and not symbols. You can change the shape of an object and create morphing effects. For example, suppose we have a square of blue color and want to change its shape to circle of pink color using shape twin. Let's see how it works. देखिए shape twin ये जो है Flash का जो feature है इसको utilize किया जाता है म्यूटेट करने के लिए फ्रॉम वन ड्राइंग ऑब्जेक्ट टू अनदर. तो देखिए जो शेप ट्विन है जैसा कि आपको पहले भी बताया था वो वर्क करता है सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ, नॉट विद सिंबल्स. तो आप जो है एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं और मॉर्फिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट. जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल स्क्वायर है ब्लू कलर का और हम करना चाहते हैं उसका शेप सर्कल में, वो भी पिंक कलर का. ओके, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, सिलेक्ट द स्ट्रोक कलर रेड एंड फिल कलर ब्लू.
Draw a circle in the first keyframe. Select the frame 50 and go to insert timeline keyframe to insert a new keyframe. Now select the keyframe at 50 and delete the rectangle by selecting the rectangle using selection tool and press delete button from the keyboard. Select the oval tool now. Now select stroke color as blue and the fill color as pink. Then draw a circle. The figure shows the circle. Click on frame 1, go to insert, shape tween. You will see an arrow with green shaded area between two keyframes in the timeline. Now circle, control, test movies, test. You can see the effect of shape tween. Okay, चलिए करते हैं इसे. सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे. ओके, फिर स्ट्रोक कलर रेड को सिलेक्ट करेंगे एंड फिल कलर ब्लू. ओके, अब देखिए फर्स्ट की फ्रेम में आपको ड्रॉ करना है सर्कल. फ्रेम 50 सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे इंसर्ट टाइमलाइन एंड देन की फ्रेम. आपका न्यू की फ्रेम आपका इंसर्ट हो जाएगा. ओके, अब आपको की फ्रेम को सिलेक्ट करना है 50 पे, रेक्टेंगल को डिलीट करना है. कैसे करेंगे, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट की को प्रेस करेंगे. अब आपको ओवल टूल सिलेक्ट करना है, फिर आपने करना है सिलेक्ट स्ट्रोक कलर एज ब्लू एंड फिल कलर एज पिंक. सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन क्लिक ऑन फ्रेम 1, फिर आप जाएंगे इंसर्ट देन शेप ट्विन. अब आप देखेंगे एक एरो विद ग्रीन शेडेड एरिया है ना, ये दो की फ्रेम्स के बीच में. फिर आप जाएंगे सर्कल कंट्रोल, देन टेस्ट मूवीज, देन टेस्ट. ओके, अब देखिए ये अब हम इफेक्ट देख सकते हैं शेप ट्विन का. राइट, लर्न मोड. टू रन अ टेस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर. टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट टू सिंबल प्रेस F8. अगर आप टेस्ट रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे, और ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रेस करेंगे F8. ओके. Okay, here is a practical work given to you. Create a symbol of a car and add it in a library. इसकी practice आप खुद से करेंगे. Okay. Next, motion tween. It is used for setting the motion of the object and resizing or changing some basic properties of symbols. It transports the object along the path. Here, you need to specify the start position and last position of the object in keyframe and using motion tween. The in-between keyframes will automatically filled up and your animation is ready. As it is mentioned earlier, it works with symbols. Oh, symbols, sorry. कहाँ से बोलूँ? As it is mentioned earlier, है ना? Action. As it is mentioned earlier, it works with symbols. अच्छा देखिए, अब मोशन ट्विन का हम यूज़ करते हैं फॉर सेटिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, या कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को रीसाइज या चेंज करनी है सिंबल्स की, उनके लिए ये ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है अलोंग द पाथ. यहाँ पे आपको स्टार्ट पोजीशन एंड जो लास्ट पोजीशन होती है ना ऑब्जेक्ट की फ्रेम में, उसको स्पेसिफाई करना होता है जब भी हम मोशन ट्विन का यूज़ कर रहे हैं. तो आपका क्या होगा, जो इन बिटवीन की फ्रेम्स है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे और आपका एनिमेशन रेडी हो जाएगा. ओके, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि ये सिंबल्स के साथ वर्क करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी विल अप्लाई अ मोशन ट्विन ऑन द सिंबल ऑलरेडी क्रिएटेड, symbol 1 truck. Let's see how it works. Now you can drag symbol 1, move the symbol to the right most side, click on frame 1, go to insert, then motion tween. You will see a blue shaded area between frame 1 and frame 24. Move the mouse pointer to the right edge of blue area. A double-headed arrow appears. Expand the area by dragging the mouse to frame 45. Take the symbol to the leftmost side of the stage. You will see that a green dotted line has appeared on the screen. It seems to show a path. Go to control, then test movie, test to see the effect of motion tween. देखिए आपको क्या करना है, मोशन ट्विन को अप्लाई करना है, और जो ऑलरेडी आप सिंबल क्रिएट कर चुके हैं, जैसे आपने सिंबल 1 क्रिएट किया था ट्रक का. ओके, तो चलिए देखिए किस तरह से वर्क करता है. अब सिंबल 1 को हम ड्रैग कर सकते हैं. ओके, सिंबल को मूव करेंगे राइट मोस्ट साइड, फिर क्लिक करेंगे फ्रेम 1, फिर जाएंगे इंसर्ट देन मोशन ट्विन. ओके, अब देखिए फ्रेम 1 एंड फ्रेम 24 के बीच में आप ये ब्लू शेडेड एरिया देख सकते हैं. ओके, फिर आपने माउस पॉइंटर को मूव करना है ब्लू एरिया के राइट एज में. ओके, एक डबल हेडेड एरो अपीयर होगा एंड फिर एरिया को एक्सपेंड करना है हमने. कैसे करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे फ्रेम 45 तक. ओके, फिर आपने सिंबल लेना है मोस्ट साइड ऑफ द स्टेज,
लेफ्ट मोस्ट साइड. ओके, आपको ग्रीन डॉटेड लाइन अपीयर हो रही है आपके स्क्रीन पे. इट सीम्स टू शो अ पाथ, राइट. देन आप जाएंगे कंट्रोल, देन टेस्ट मूवी एंड टेस्ट. और इसके बाद नाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ मोशन ट्वीन, राइट. नेक्स्ट, motion guide. Motion guide is an interesting tool and knows the path and takes you the destination and helps you to define the movement path of the object. The object will follow the path you define for it and move accordingly. In the previous topic, we defined the movement of an object using motion tween, which makes it move in a straight direction. But using motion guide, we can create a predefined path, which may be a circle, curve, or a zigzag. For example, we will create a motion guide for a bird. Import a picture of bird or you may draw it by yourself with the pencil tool. Now click modify, convert to symbol. It will be converted into a symbol. A convert to symbol dialog box opens. Enter the symbol. रुक जाओ यार, तो बहुत बड़ा हो गया. पहले फैक्ट फाइल बता देती हूँ मैं. ये लाइन लेती हूँ बट यूजिंग से. हाँ, बट यहाँ से ठीक है. हाँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं. हाँ. इस पे आ जाना. एक्शन. But using motion guide, we can create a predefined path which may be a circle, curve or zigzag. देखिए, ये भी motion guide आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है. ओके, एंड इसको पाथ पता है और आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है. आपको हेल्प करता है जो मूवमेंट पाथ होता है ऑब्जेक्ट के, उसको डिफाइन करने में. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पाथ को डिफाइन करेगा, फॉलो करेगा जो आप डिफाइन करेंगे एंड फिर अकॉर्डिंगली मूव करेगा. तो प्रीवियस टॉपिक में हमने डिफाइन किया था मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग मोशन ट्वीन, राइट, जो कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है. बट मोशन गाइड की हेल्प से हम एक प्री डिफाइंड पाथ क्रिएट कर सकते हैं, जो सर्कल भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, zigzag भी हो सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी विल क्रिएट अ मोशन गाइड फॉर अ बर्ड. तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. हम एक बर्ड के लिए मोशन गाइड क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले फैक्ट फाइल. टू इंसर्ट अ न्यू फ्रेम प्रेस F5. न्यू फ्रेम इंसर्ट करने के लिए आप प्रेस करेंगे F5. ओके ओके. Import a picture of bird or you may draw it by yourself with the pencil tool. Now click modify, convert to symbol. It will be converted into a symbol. A convert to symbol dialog box opens. Enter the symbol name as bird and change its type to graphic and click OK button. This is created in layer 1. Click insert timeline then layer. Thus a new layer will be created. Its name will be layer 2. Create a path in layer 2 by using a pencil tool and stroke color from the properties panel. Draw a path on the stage for the bird. Select the path using selection tool and remove it by clicking on edit, then cut. Now click insert motion tween after selecting layer 1. A blue shaded area appears up to frame 24. Place mouse pointer on the right edge of the blue area. When pointer changes to double-headed arrow, drag the mouse up to frame 45. Go to edit, paste in place to paste the path you created for the bird in this layer. It will be observed that the path has been changed into motion. It is represented by green dotted lines. Look at the figure shown here. Go to control, test movie, test to see the bird flying in the motion path you created for it. Okay. चलिए अब इसको हम समझते हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे, बर्ड की पिक्चर को आप इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं पेंसिल की हेल्प से. ओके ओके. नाउ आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई पे, देन कन्वर्ट टू सिंबल, और ये सिंबल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. अब देखिए आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है. कन्वर्ट टू सिंबल, यहाँ पे सिंबल का नेम एंटर करेंगे विच इज़ बर्ड एंड इसका टाइप हम चेंज करेंगे टू ग्राफिक एंड देन क्लिक करेंगे ओके. अभी आपके लेयर 1 में क्रिएट हो गया. अब हम जाएंगे इंसर्ट पे, क्लिक करेंगे, देन टाइमलाइन लेयर. अब एक न्यू लेयर आपकी क्रिएट हो गई है, इसका नेम हुआ लेयर 2. फिर आपने पाथ क्रिएट करना लेयर 2 में पेंसिल टूल की हेल्प से एंड स्ट्रोक कलर जो आपको मिलेंगे प्रॉपर्टीज पैनल में. फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, पाथ ड्रॉ करना है बर्ड के लिए. ओके, और इसके बाद सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम इस पाथ को सिलेक्ट करेंगे और इसको रिमूव करेंगे. रिमूव करने के लिए हम जाएंगे एडिट पे, देन कट. ओके, नाउ क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, मोशन टूल. ओके, अब देखिए एक ब्लू शेडेड एरिया अपीयर आपका हो रहा है
अप टू फ्रेम 24 अपीयर हो रहा है। माउस पॉइंटर को प्लेस करेंगे हम ब्लू एरिया के राइट एज पे। ओके ओके, अभी जो पॉइंटर है आपका डबल हेडेड एरो में चेंज हो गया। माउस को हम ड्रैग करके लेके जाएंगे टू फ्रेम 45 तक। ओके, नाउ वी विल गो टू एडिट देन पेस्ट। इससे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेस्ट हो जाएगा पाथ जो हमने बर्ड के लिए क्रिएट किया था। ओके ओके, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइंस आएंगी ना, दैट मीन्स दिस इज द पाथ विच हैज़ बीन चेंज इनटू मोशन। ओके, नाउ विल गो टू कंट्रोल देन टेस्ट मूवीज एंड देन टेस्ट। और देखिए बर्ड आपकी जो मोशन हमने क्रिएट किया था ना पाथ, इस पे ये मोशन पाथ में फ्लाई करेगी। राइट, क्लासिक मोशन गाइड। This guide is used for creating a motion path for an object. The object in question follows this path only. Okay, अब इस गाइड का यूज किया जाता है एक मोशन पाथ क्रिएट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का। ओके, फॉर एग्जाम्पल import a picture of honey bee or create it yourself using pencil tool. Go to insert, classic tween option. Now click on frame 50 in layer 1. Circle insert, timeline, new frame. If you wish to insert a new keyframe, move the object to destination. Now click on new layer to insert a new layer. It is located at the left lower corner of the windows. Click on frame 1 of layer 2. Now select layer 2. Now right click on the small icon that appears before layer 2. Open properties now. A properties dialog box opens. Under type quest option, click on guide radio button. Click OK button. Now drag layer 2 on layer 1 and vice versa. As a result, the layer is converted into guide layer. Select a frame on the layer 1, go to properties panel and select the option orient to path to rotate the object faced along with the path. To test your animation, go to control, test movie, then test. Right? चलिए देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले हनी बी की पिक्चर को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, या क्रिएट भी कर सकते हैं पेंसिल टूल की हेल्प से, बट हम इसे इंपोर्ट करेंगे। ओके, नाउ हम जाएंगे इंसर्ट, क्लासिक ट्वीन ऑप्शन पे। अब हम लेयर 1 में जो क्लिक ऑन फ्रेम 50 है ना, ऑन फ्रेम 50 पे क्लिक करेंगे, फिर करेंगे क्लिक इंसर्ट, फिर टाइमलाइन एंड न्यू फ्रेम। अगर आप एक न्यू फ्रेम को इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को डेस्टिनेशन तक मूव करना है। ओके, फिर आप क्लिक करेंगे न्यू लेयर पे, तो न्यू लेयर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ये आपके विंडो के लेफ्ट लोअर कॉर्नर में होगी। फिर आप क्लिक करेंगे ऑन फ्रेम 1, वो होगा लेयर 2 का। ओके, फिर आपने लेयर 2 को सिलेक्ट करना है, फिर आपने राइट क्लिक करना है, जो आप ये जो छोटा सा आइकन है जो आपके लेयर 2 से पहले आ रहा है। ओके, फिर ओपन करना है प्रॉपर्टीज़ को। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फिर टाइप ऑप्शन पे आप जाएंगे, गाइड रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, देन ओके। फिर आपने क्या करना है, ड्रैग करना है लेयर 2 को लेयर 1 पे एंड वॉइस वर्सा, और इससे जो लेयर है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी गाइड लेयर में। ओके, फिर हम सिलेक्ट करेंगे फ्रेम को ऑन द लेयर 1, फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज पैनल पे एंड सिलेक्ट करेंगे ओरिएंट टू पाथ। ओके, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होगा फेस्ड अलोंग विद द पाथ। अब आपके टेस्टिमेशन एनिमेशन को आपने टेस्ट करना है, तो आप जाएंगे कंट्रोल देन टेस्ट मूवी एंड देन टेस्ट। राइट, summary points. A symbol is a static object. We use it in our animations. Symbol is stored in a library for future use. There are 3 types of symbols in Flash: button, graphic and movie clip. Animation is an illusion of the movement of the series of still images created by modifying the objects in a rapid succession. Tweens means to define some actions in between 2 points in a timeline. Shape tween is used to mutate from one drawing object to another. Motion tween is used to set the motion of the object, resize or change some basic properties of symbols. Motion guide is just like a tourist guide who knows the path and takes you the destination. Classic motion guide helps to create a motion path for an object which follows the path and moves accordingly. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।